A very good morning to one and all class 11. Welcome to your TSN English class. Today we'll start chapter 8, The Silk Road, from your book Hornbill. And this chapter is written by Nick Middleton. So basically, students, Silk Road. What is Silk Road? This one is like a road or a route. Previously, or in ancient time, people used to trade with this route, and especially, so that is why this route is known as Silk Route. And most probably, the things which are like import or export from this route is like the trade of silk and like that. So let's start the introduction of this chapter, Silk Road. So, here, student, in Silk Road, Nick Middleton described his thrilling but difficult journey through the Tibetan Himalayas. So, in this chapter, जो निक मिडल्टन जो राइटर है हमारे चैप्टर के, उन्होंने अपनी जर्नी, एक ऐसी थ्रिलिंग जर्नी और एक ऐसी डिफ़िकल्ट जर्नी जो कि वो तिब्बतन हिमालयस पे लेकर गए थे, उस जर्नी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है. So, he was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. And at that time, उनको माउंट कैलाश पर जाना था ताकि वो उस कोरा वाली जर्नी को कंप्लीट कर सकें. The old trade route was known as the Silk Road. As I told you that previously, this route, Silk Route, is known is this one is the like old trade route for traders, and in ancient time, people used to trade with this route. So this is known as Silk Road. So the graphic description of the local culture and places are really graphic and breathtaking. And here in this chapter, Nick Middleton, writer, describes some culture, some places, or some graphic and breathtaking डिस्क्रिप्शंस हियर. सो जो राइटर है वो ये हमें कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन बता रहा है जो यहाँ के कल्चरल प्लस ग्राफिक चीज़ों को दर्शाता है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. A flawless half moon floated in a perfect blue sky. On the morning, we said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. Now that we were leaving Ravu, Lamo said she wanted to give me a farewell present to complete the Kora, and Shidu said I ought to get some warmer clothes. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long sleeved sheepskin coat that all of the men wore, and Zeton seized me up as we clambered into his car. Ah, yes, he declared Drogba. So here in the first paragraph of the chapter, students, the writer Nick Middleton, he's trying to describe that just a flawless half moon floated in the perfect blue sky on the morning. So morning time में जो आधा चांद है वो पूरा स्काई में दिख रहा था. एंड वी सेड अ गुड बायज, यानी इतना, दैट मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग इन्होंने अपने गुड बाय, या उस वक्त जब चांद जो है अर्ली मॉर्निंग में छुपता नहीं है या दिखता है, तो उस वक्त इन्होंने गुड बाय कहा. And at that time, extended bank of cloud-like long French loaves glowed pink as the sun emerged at a splashed distant mountain tops. और जो ये जो फ्रेंच लोव्स हैं, यानी जो फ्रेंच लोग, जो फ्रेंच ब्रेड आप कह सकते हैं उसे, जो फ्रेंच ब्रेड है, तो सिमिलरली स्काई और क्लाउड्स भी वैसे ही पिंक दिखाई दे रहे थे. एंड धीरे धीरे स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप विद रोज टिंटेड ब्लश, और जो मॉर्निंग में सूरज उगने का जो टिंटेड ब्लश है वो धीरे धीरे मॉर्निंग में दिखाई देने लगा था. नेक्स्ट वन, नाउ दैट वी वर लीविंग रावू, और अब ये वो टाइम था जब वो रावू के लिए रवाना हो रहे थे, जब हम रावू गांव को छोड़कर, यानी रावू जगह को वो छोड़कर जा रहे थे. लामो सेड शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट. तो लामो, हु इज़ लामो? लामो इज़ द नेम ऑफ अ विमेन, जो जिसके यहाँ, जिस होटल में, या जिस आप कह सकते हैं जिस जगह पे वो लोग रुके थे,
धर्मशाला काइंड ऑफ। तो वो जो जगह थी वहाँ जो एक लेडी थी जिसका नाम था लाहमो, उसने उन्हें कहा कि वो उन्हें गुड बाय कहना चाहती है, एंड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट, और वो उनको एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है। एंड आफ्टर दैट वो कह रहा है कि वन इवनिंग आई टोल्ड हर थ्रू डैनियल, उसने उस लेडी को लामो जो है उस लेडी को डैनियल के थ्रू ये कहलवाया था दैट आई वॉज हीडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, कि मैं एक दिन माउंट कैलाश पे ये जो कोरा नामक जगह की यात्रा है ना, ये ज़रूर कोरा नाम की जो रिलीजियस और पिलग्रिमेज यात्रा है, इसको माउंट कैलाश की इस एक बार इस जर्नी को मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा। एंड शी डू सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, एंड यही सब देखते हुए उस लेडी लाहमो ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ वार्मर क्लोथ्स लेके आती हूँ। एंड आफ्टर दैट after coat, after ducking back into her टेंट शी emerged कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीप स्किन कोट, और जब वो अपने टेंट में जाती है, डकिंग बैक इनटू द टेंट मीन्स जब वो टेंट में अंदर जाके वापस आती है, तो दिस इज लाइक इनसाइड आउटसाइड एक्टिविटी वेर शी एंटर्स इनटू अ टेंट एंड फाइंड आउट समथिंग एंड ब्रिंग आउट समथिंग फ्रॉम द टेंट एंड फाइनली हैंडेड ओवर टू दैट मैन। और जब वो बाहर टेंट से बाहर आती है तो वो अपने साथ एक लॉन्ग स्लीव शीप स्किन का कोट लेकर आते हैं। एंड जेटन सीज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, और जेटन ने उसे ठीक से देखा जब वो अपने क्लाइम में उसकी कार में किस तरह वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से चढ़ रहा था। आ यस ही डिक्लेयर्ड ड्रोग्बा सर, और उसके बाद उसने ये कहा कि ये एक ड्रोग्बा ड्रोग्बा इज अ काइंड ऑफ लाइक आप कह सकते हैं एक अ पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ शीप्स एंड लाइक दैट, तो एक पशुपालक आप मान सकते हैं। आफ्टर दैट उन्होंने कहा ड्रोग्बा सर। सो वी took a short cut. Now move on to next paragraph, students, and I'm reading your this one is your next paragraph. So we took a shortcut to get off Yankton. Zeton knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kailash. It involved crossing several fairly high mountain passes, he said. But no problem, sir, he assured us. If there is no snow, what was the likelihood of that? I asked, not knowing, sir, until we get there. So we took a shortcut to get off the Yankton. तो वो कह रहा है कि हमने वहाँ जाने के लिए क्या लिया, शॉर्टकट रास्ता अपनाया। एंड शैंगतंग जाने के लिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। एंड आफ्टर दैट जेटन एक ऐसे रास्ते को जानता था जो कि आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट से सीधा कैलाश और माउंटेन्स की तरफ जाता है। एंड उस रास्ते में जो माउंटेन्स हैं उनको रास्ता पार करते हुए वो आगे बढ़ता था। एंड उसने कहा कि उसे कोई समस्या या कोई डिफ़िकल्टी आगे नहीं होगी। एंड उसने हमें उन लोगों को सेटिस्फाई किया है, विश्वास दिलाया है कि अगर बर्फ़ ना हुई तो फिर वो पूछता है कि मैंने पूछा कि क्या बर्फ़ की वहाँ कोई चांसेस है और लाइक दैट, तो वो कहता है कि पता नहीं, दैट आई डोंट नो कि वहाँ पे बर्फ़ होगी या नहीं होगी। दैट मीन्स मैं तो खुद नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट हियर, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते हाउ कैन आई टेल यू कि वहाँ पर बर्फ़ है या नहीं है। सो योर इन दिस पैराग्राफ योर स्टूडेंट्स बेसिकली जो information है that's going on there, and after that what was there that in this paragraph. So let's read from gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few geysers. And in that shortcut way there are some gently rolling hills of Ravu. तो वो कह रहा है उस शॉर्टकट वे में उन्होंने देखा कि रावू नामक जगह के पूरे हिल्स, मतलब जो दैट प्लेस इज फुल ऑफ हिल्स, और एक के बाद एक हिल्स जो है रोलिंग हिल्स काइंड ऑफ वन बाय वन जो है वो हिल्स दिखते ही जा रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कहीं ब्रेक है या कुछ है, या ऐसे आप कह ले पहाड़ों की वादियाँ ही वादियाँ थी। द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट प्लेन्स, एंड आफ्टर दैट शॉर्टकट वो एक बड़े से प्लेन वाली जगह पे आ गए विथ नथिंग देम एक्सेप्ट अ फ्यू गेजल्स, जहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ फ्यू एनिमल्स, और यू कैन से दैट few deers. Gazelles are what? Few deers are there that would look up from.
So few deers are over there and that would look up from the nibbling arid pastures. And these deers जो क्या कर रहे थे? Move on to next page. So that would look up from the nibbling arid pasture and frown before bounding away into the void. And ये जो हिरणों का झुंड है दैट वुड लुक अप, उन्होंने उनकी तरफ देखा एंड ये हिरणों का झुंड जो है वो सूखे जो वो चारागाह थे दैट इज एरिड पैस्चर्स उनकी तरफ भागता जा रहा था एंड ट्रॉन बिकेम बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, और फिर वो कहीं उस वॉइड में छुप गया। फॉर द रॉन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, और धीरे धीरे जैसे वो रास्ते पे आगे चलते गए जो वो प्लेन वाला रास्ता था वो ग्रासी जो ग्रास एरिया है दैट डिक्रीजेज एंड जो स्टोनी एरिया यानी जो चट्टानों वाला जो पथरीला एरिया है वो ज़्यादा था। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू, और आफ्टर दैट उन्होंने देखा कि वाइल्ड एस यानी जंगली गधों का एक झुंड जो है वो उनकी तरफ आ रहा था। Zeton told us that we were approaching them long before they appeared. कैंग एंड जतन ने उन्हें बताया कि हम उनको अब देख रहे हैं बल्कि वी वर अप्रोचिंग देम, इतनी देर से हम उनके पास जाते जा रहे थे, बट ड्यू टू दैट उन्हें पता ही नहीं चला और वो उन्हें दिख अब रहे हैं बल्कि जा तो वो उन्हीं की तरफ रहे थे। कैंग ही सेड पॉइंटेड टुवर्ड्स द फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, और उसके बाद उसने कैंग अपनी भाषा में कहा और कहा वहाँ दैट इज अ पॉल ऑफ डस्ट, दैट मीन्स दैट इज अ बलून काइंड ऑफ डस्ट से पूरा एक बलून बलून सा बन गया है, वहाँ पर डस्ट ही डस्ट है। When we drew near, I could see the herd of galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on the predetermined course. Plume of dust billowed in the crisp, clean air. And what was there, students? That अब वो कह रहा है व्हेन वी ड्रू नियर, जब वो उनके और पास पहुंचे, आई कुड सी द हर्ड गैलपिंग, तो वो कह रहे हैं राइटर यहाँ पे कि वो उस वाइल्ड एस और उनके जो वो झुंड है जानवरों की झुंड उनको आपस में गैलपिंग और प्रैक्टिसिंग, और आप कह सकते हैं कि देर आर लाइक तेज उछलते हुए। व्हाट इज गैलपिंग? गैलपिंग इज लाइक जंपिंग इन अ वेरी फास्ट, और लाइक बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जंप कर रहे थे, एंड व्हीलिंग इधर उधर राउंड सर्कल्स में जा रहे थे, टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनोवर्स, जैसे कि अ मूवमेंट और दैट काइंड ऑफ अ स्किल दैट नीड्स अ केयर और अ स्किल लाइक मार्च पास और काइंड ऑफ दैट, तो वो जानवरों का झुंड है वो कुछ ऐसा ही कर रहा था। एंड सम प्री डिटर्मिंड कोर्स, ऐसा प्री डिटर्मिंड कोर्स, कोर्स या मीन्स पाथ, so plumes of dust billowed into the crisp clean air, and there are some plumes, you can say that डस्ट के कुछ ऐसे प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और जो प्लूम्स हैं डस्ट के वो बिलोड, बिलोड हियर मीन्स टू फिल विथ एयर एंड मूव इन विथ द विंड, एंड दैट क्रिस्प इज लाइक द प्लीजेंट हार्ड एंड ड्राई एयर। तो इस तरह की जो वो प्लीजेंट हार्ड और ड्राई एयर है उसमें वो जो आप कह सकते हैं धूल का जो गुबार है वो पूरा बनता जा रहा था। So thank you all. We'll continue the next part of our chapter in our next video. Till then, students, stay safe. Thank you all.